वेलकम टू द पॉडकास्ट दुरान फाइल्स। आई एम योर होस्ट हुर शफी और आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री इन केपी एंड द स्टार्टअप कल्चर। फॉर दैट वी हैव टुडे विद अस लारेब फरहत, who is a policy and advocacy manager at Pakistan IT Industry Association, which is known as Pasha. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम ठीक। अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। सो लारेब, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप क्या करती हैं एज अ पॉलिसी मैनेजर? क्या है और Shasta. पाशा जो है वो Yeah. क्या करता है? एंड एक्सप्लेन व्हाट पाशा इज। Okay. So, I joined Pasha around 3 months back, and although I've worked in a similar industry while back in Peshawar in 2019 and 2022, 2020, but after that I jumped into another sort of career, which was think tank, the ecosystem of think tank, and then I moved back to the IT because that was like a true calling, and coming back to this sector is like homecoming to me. So Pasha is basically the Pakistan IT Company Association. What I basically do at Pasha is कि हम लोग ease of doing business and cost of doing business, ये दो चीज़ें जिस पे काम करते हैं. So we have a network of around 1,000 plus IT companies registered with us, and ये there are, पाकिस्तानी कंपनीज है yeah, सारी? these are the Pakistani IT companies, and these are the IT companies जो हमारे साथ basically जो है रजिस्टर्ड है. मेंबरशिप हम इनको देते हैं, साथ मेंबरशिप के जितने जो डफटेल्ड इनके बेनिफिट्स होते हैं वी गिव इट टू देम. लेकिन बिसाइड्स दैट व्हाट एज अ पॉलिसी मेकर माय रोल फॉर पाशा इज़ के वी क्रिएट पॉलिसीज़ for the government policies for these IT companies, so there's ease of doing business in Pakistan. So for instance, if I give you a very basic example, you are a founder of an IT company, and you're facing some issue in, let's say, a certain policy which is maybe related to cybersecurity or is related to taxation matter, which you think there's a certain government policy that does not favor your company in Pakistan or does not favor the IT ecosystem, thriving in Pakistan. So what we do is, you as a member, as our members, we're the voice of the industry, we're the voice of the IT industry. We advocate for your cause, and then we bring reforms in those policies. We advocate to एट the गवर्नमेंट लेवल? yeah, at government level we alter, we structure those policies, advocate, do all of these government meetings where we tell these where we actually negotiate our way into the policies and tell them that ये फलानी फलानी पॉलिसी है जो कि हमारी आईटी इंडस्ट्री के इंटरेस्ट्स को बेस्ट सर्व नहीं कर रही. एंड दैट्स हाउ यू नीड टू मूव टूवर्ड्स अ डिफरेंट सेक्टर. एक डिफरेंट एरिया की तरफ आपको जाना पड़ेगा, एक डिफरेंट क्लॉज ऐड करना पड़ेगा, एक एड अप क्लॉज ऐड करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ वी मेक श्योर दैट अ सर्टन पॉलिसी इज़ अप टू द मार्क एंड अ सर्टन पॉलिसी इज़ मेड जिसके थ्रू आईटी इंडस्ट्री के जो इंटरेस्ट्स हैं वो सर्व हो रहे होते हैं. So that's precisely what Pasha do on the policy level only. There are other sectors as well. अच्छा, Yeah. ये तो स्पेसिफिकली आपका हो गया ना काम। Yeah, yeah. तो आपने, बल्कि आई रेड कि आपने खुद भी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। यू वर इन द एनआईसी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इन पेशावर। Yes, yes. तो वो स्टार्टअप कैसा था? व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस और वो था किस बारे में? Okay, so we were four friends in Peshawar, and we had this idea because Peshawar में there are not much entertainment opportunities. So शाम के time जब आपका office ख़त्म हो रहा है, so you have practically nothing to do rather than just going home and maybe just दोस्तों के eat. साथ बैठ गए, खा There's लिया not even कुछ? a concept of dostok saath baith ke because there are not enough cafes in Peshawar. There are virtually no cafes as of such in Peshawar. They're like dine-in restaurants, but how many times do you need to go to the dine-in restaurants and sit with your friends? So if you see Islamabad, Lahore, Karachi, there is a proper culture of cafes. Sham ki chai ka ek concept hai. आओ इधर चलते हैं, आउटिंग भी हो गई, Yeah, बस ज़्यादा exactly. खर्चा भी नहीं हुआ, चाय पी और चाय गपशप पी लग ली ली। आपने, 200 रुपए की चाय पी ली, एंड इट्स ऑलमोस्ट डन, राइट? कोयटाज एंड एवरीथिंग. पेशावर का चूंकि थोड़ा सा प्री कंसीव सा एक कल्चरल बैरियर है, जिसकी वजह से पेशावर में ये कैफेज का कल्चर इट्स नॉट वेरी नॉर्मल. सो we four friends, we decided to have something, to launch something to fill this gap, because we needed to solve a problem, and this is what we saw as a problem. And to me, every problem is basically an opportunity. So our startup was known as Kissa Khwanan,
and the idea was, From the Kissa Khwani Bazaar. yes, exactly. The idea was derived from the famous Kissa Khwani Bazaar of Peshawar, jahan par before 9/11 there used to be a lot of traders and foreigners used to come in Kissa Khwani Bazaar, and they used to sit there for hours and hours and do all the storytelling sessions, हाँ, right? Yeah. So पुराने we, स्टाइल के बिजनेस में तो हाँ, गपशप में पुराने फिर स्टाइल के कहानी ये सारे सब। ताजर वगैरह आते थे, वहाँ पर बैठते थे, गपशप लगाते थे. सो वी डिसाइडेड टू रिवाइव दैट कॉन्सेप्ट, राइट, बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. ठीक है, किस्सा ख्वानान मीन्स कहानियाँ सुनाने वाले, ठीक है, किस्सा गोई करने वाले. सो हम लोगों ने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई. वी स्टार्टेड ऑफ विद लाइक व्हाट 3 to 4 पीपल, एंड हम लोगों ने आर्टिस्ट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए. सो इफ़ यू आर अ पोइट, right, and I am a singer, and my friend is an instrumentalist, and another friend is a stand-up comedian, and another friend is a storyteller. So we bring them on one platform, and we do a open mic night, right? And उस open mic night में you are free to sing, कुछ भी गा रहे हो, आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, इकट्ठे होके इकट्ठे होके एक छोटी सी एंजॉय करो जैसे और सेफ लोगों को भी स्पेस होते एंटरटेन हैं करो, सही। आपके, हाँ, तो वो छोटी सी कम्युनिटी बिल्डिंग आपकी, हमने कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज शुरू की. ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास नहीं होता. इफ यू गिव देम एन एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटी, यू होपिंग कि लोग खुद आएंगे एंड इट विल ग्रो. इट विल ग्रो. तो हमने स्टार्ट किया, एंड NIC पेशावर वाज आवर बिगेस्ट सपोर्टर. हमारा जो पहला इवेंट हुआ था, हमें इक्विपमेंट, द स्पेस एंड एवरीथिंग विद इट वाज प्रोवाइडेड बाय NIC पेशावर, और उन्होंने हमें पूरी तरह से फैसिलिटेट किया. एंड उस इवेंट के बाद वाज अ लॉन्चिंग पैड इवेंट, एंड देन उसके बाद वी स्टार्टेड डूइंग बिगर एंड बिगर. हमारे पहले इवेंट पे ऑडियंस वाज 20 people, then we went to 1,000 people for पहला an इवेंट event. और दूसरे में कितना फर्क था? No, दूसरे में नहीं. This is like after ओके, 1.5 years. We अच्छा, went to, 1.5 साल में. yeah, 1.5 साल में we touched up 1,000 दैट्स अ participants. बड़ा क्राउड होता है Yeah, 1,000 बंदे का. and we touched around, we created a community of 70 artists in a city like Peshawar, जो कि आप देखो तो आपको इतनी छोटी सी लगती है. Peshawar is a very small city. तो we created that, and the biggest achievement out of that was कि people who used to sing with us started producing their own solos. They started producing their own music. They started, going on TV channels for interviews, and उनको कुछ नजर आया कि यार ओके, इस एक्टिविटी में आगे there is, ग्रोथ है. हाँ, आगे growth है. तो So they started pursuing it as a career. So we provided that safe space for people. लोगों की बड़ी आपने जिंदगी खराब की है कि चलो, नॉट एवरीबॉडी मेक्स इट सारा कुछ. तो NIC के अंदर हाउ इज द इन्वायरमेंट? वहाँ पे आइडियाज़ किस तरह के पिच हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, फंडिंग राउंड्स क्या होते हैं, क्या किस तरह के होते हैं? सो आर पीपल मोर लुकिंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर्स और एप्स वगैरह, या कोई प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं तो उस पर भी फोकस किया जाता है NIC? Okay, so NIC Peshawar, basically, if I just start with कि माहौल कैसा है. So NIC Peshawar was launched in 2018 in Peshawar. It was through the Ignite Fund, basically. तो जब वो launch हुआ ना, तो it was the most coolest office in Peshawar. And हर किसी का होता था कि यहाँ नौकरी करनी है. द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी डिफरेंट. ठीक है, को वर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट उस वक्त पेशावर में इतना कॉमन नहीं था. एक बेस कैंप चल रहा था, लेकिन दैट वाज नॉट वेरी, लोग वर नॉट वेरी फेमिलराइज विद दैट कॉन्सेप्ट. तो जब NIC पेशावर आया, तो उसकी एक तो लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक थी. ठीक है, इट वाज इन द मिडल, एंड देन पीपल स्टार्टेड टू नो अबाउट इट, एंड NIC पेशावर जस्ट बूम्ड इट. everyone started realizing उस वक्त पेशावर में जो था, the culture of the idea and the culture of entrepreneurial ecosystem और entrepreneurial spirit, वो उस वक्त जो है ना थोड़ा सा थ्राइव करना शुरू हुआ. when it comes to pitching और सॉफ्टवेयर वगैरह, तो currently अगर आप पाकिस्तान पे ओवरऑल ही देखें तो हमारी ज़्यादातर जो हमारी सर्विसेज हैं, वो हम लोग सर्विसेज बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे होते हैं. हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करें. वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोडक्ट. दिस इज़ लाइक अ ड्रॉबैक जहाँ पे पाकिस्तान नीड्स टू वर्क. सो हमें बेसिकली करना ये है कि वी नीड टू प्रमोट अ मोर लाइक अ मेड इन पाकिस्तान थिंग. ठीक है, अभी फ़िलहाल हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं. वी आर नॉट सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसिंग कम्युनिटी जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि there there are a lot of freelancers present in the market, and a lot of all of them are usually selling their services, right? तो तो focus NIC फोकस मतलब फंड करता है स्टार्टअप्स को NIC? नहीं. So basically NIC जो है ना, वो
मेंटोरशिप वगैरह प्रोवाइड करता है and आपको कनेक्ट करता है वीसीज के साथ और एंजल इन्वेस्टर्स के साथ। वर्चुअली केपी में इस वक्त वीसीज की काफ़ी कमी है जो ऑन ग्राउंड मौजूद है By ज़्यादातर। VCs you mean द venture वेंचर capitalists? कैपिटल, ठीक है, तो वो उनकी वर्चुअली दे आर लाइक एब्सेंट, लेकिन जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं केपी में दे आर थ्राइविंग। एंड एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोस्टली जो केपी की इस वक्त इंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम चल रहा है वो एंजल इन्वेस्टर्स पे चल रहा है। ऑल्दो देयर आर चैलेंजेस इन दैट, जो ये हो रहा मसला उसमें ये आ रहा होता है कि most of the startups in KP they're complaining कि जो angel investors है their attitude is more like predatory, ठीक है। So there is, this is the angle that needs to be worked on. How so? मतलब predatory So किस तरह? basically taking a lot of equity shares, ठीक है, while they invest in it, and on in return of it they're not providing up to the mark mentorship. So when you are investing, either you are VC or an angel investor, or basically investor is a more effective one क्योंकि वो आपको ज़्यादा guidance and जो है उधर से मिल रही होती है। एंड दे यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स जो शुरू में आप में आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं, अर्ली स्टेजेस में आप स्टार्टअप इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड मेंटोरशिप उनकी साइड बाय साइड चलती रहती है। The culture and the challenge that KP is currently facing is कि the obstacle is hindrance to the lack of hindrance to the access to these services like legal services, taxation services, आपकी consulting services, इस तरह की जितनी भी services हैं उसमें problem है। Now this is actually where the angel investors come in, where they come in and help you while you grow, आपकी mentorship करें। But the culture that is developing in KP is कि the angel investors they're like doing a lot of asking a lot in equity shares, but in return their mentorship is not up to the mark. So it's recommended कि इधर एक पॉलिसी इंटरवेंशन होनी ये चाहिए। तो स्टार्टअप में लोगों को नहीं पता होता शुरू शुरू में अपना काम शुरू करते, बट देयर इज अ नेगोशिएशन दैट यू हैव टू डू, और एवरीबडी वांट्स द लायंस शेयर, ठीक है। तो एज अ पर्सन जो आप बिजनेस अपना या कोई भी कंपनी शुरू करें, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर बनने लगे आप, तो यू नीड टू नो कि यार ओके दिस इज हाउ मच आई एम विलिंग टू गिव अवे। इसके बारे में तो खैर एजुकेशन होनी चाहिए, Yeah. बट ओके लेट्स मूव ऑन टू खैबर पख्तूनख्वा का जो टेक लैंडस्केप है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, वो कैसा है? I'll still say कि it's in nascent and infancy stages, ठीक है, इसके ऊपर it's अभी भी evolving है, काम हो रहा है and work has been done, लेकिन I won't say कि काम इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा। You have पेशावर में KPIT बोर्ड मौजूद है, ठीक है, and अभी recently 2 days ago they launched a digital connect in Bajor, a co-working space in Bajor district, and the next one in line is in Orakzai district, ठीक है। We have these durshals, so व्हाट डू दीज Durshal डू? space, so Durshal is basically a co-working space होता है, और they provide you networking opportunities, access to all these services like आपको internet accessibility and digitalization की तरफ they move you to it. So Durshal is a Pashto word which translates into gateway, दरवाज़ा, दरवाज़ा। रास्ता, ठीक है। So Durshal is basically the epitome of जब आप उसकी बात करते हैं कि it's a gateway, so tech gateway, excellence gateway, it's basically reflecting that. Durshals, we have Durshal Aptabad, we have Durshal Swabi, Swat, Mardan, पेशावर में 2 Durshal ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन्होंने छोटे छोटे वर्किंग स्पेस बना दिए हैं, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी हैवली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एज वेल। USAID का भी इसमें जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्टिविटीज़ देर फंडिंग टू मच इनटू इट कि आप लोग इस चीज़ों पे टू फैसिलिटेट द कोवर्किंग स्पेसेस। My startup Kisa Khonan was also incubated in Durshal. IM Sciences का के अंदर जो Durshal है उसके अंदर we were incubated, and we were incubated for 6 months. हमारे साथ 6 से 7 startups और incubated थे, and after 6 months हम graduate हो गए. So there is a cycle that goes on. व्हाट डू यू मीन Startups. ग्रेजुएट हो गए? So when the नाउ यू आर ऑन योर ओन? now I'm on my own means that I have now graduated, and now I have to move towards an upper stages. So मेरी mentoring complete हो गई है, ठीक है, नाउ right? Yeah. यू नीड So टू मेक इट ऑन योर ओन एंड देन स्टार्ट so मेंटरिंग so अदर launching पीपल। part start हो गया, and now I have to like kind of keep up the ladder, ऊपर चढ़ते रहो, accelerator programs में अब मैं जा सकती हूँ, different other programs में जा सकती हूँ, because 6 महीने तक best trainers, best startup founders, best people, best professors came in every 2 days in a week to train me, to train my startup,
to train me how to make pitches, to train me how to make proposals, to train me how to apply for grants. And now my startup is in a position that I need to now start working. उस आइडिया को जो है, जो मैं आइडिया लेके आई थी, ठीक है, उसको एक ट्रांसलेशन फेज में लेके जाना है. सो इट्स अबाउट स्टार्टअप कमर्शलाइजेशन. What Dershals basically do is that they enroll the startups and then they work towards their commercialization. अच्छा, स्टार्टअप्स की बात है तो केपी का जो बिजनेस कल्चर है उसको किस तरह रीशेप कर रहे हैं स्टार्टअप्स, बिकॉज आई एम श्योर ये पहले तो नहीं था. इट वाज सो के स्टार्टअप्स इस तरह आ रहे हैं कि भी पुराने अपने तरीकों पे ही हम सारे पाकिस्तान पूरा ही वी आर a couple of decades behind the rest of the world when it comes to technology and everything. तो स्टार्टअप कल्चर केपी के पुराने बिजनेस कल्चर के साथ किस तरह क्लैश कर रहा है या किस तरह इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने आप को? अच्छा, तो एक तो थोड़ा सा ये है कि ट्रेडिशनलिज्म तो थोड़ा सा रहता है. इट्स स्टिल देयर, जो कन्वेंशनल वेज होते हैं दे स्टेज. जो टेक्नोलॉजी है वो थ्राइव कर जाती है. अगर आप केपी के इकोसिस्टम को अगर बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आप कराची लाहौर से कंपेयर करें, आई वोंट इवन गो टू इस्लामाबाद, कराची लाहौर से भी इवन कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, केपी फिर भी उस लिहाज से बहुत पीछे है. ठीक है, we're still very far behind, but we're working towards it. That's how I see it, that we're working towards it. So गैप में क्या चीज़ें हैं आपके ख्याल से? so there's a lot of things. There's a lack to access to finance, access to networking opportunities. आपके यहाँ पर लाहौर कराची में जिस तरह के स्टार्टअप मीटअप्स होते हैं, ठीक है, फाउंडर्स आ रहे हैं, मैच मेकिंग हो रही होती है, मेंटोर की एक स्टार्टअप के फाउंडर के साथ के पूरी डायरेक्ट आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं. केपी में इट्स अ लॉट ऑफ मिसिंग. केपी में there's not a culture, उन्होंने वो डेवलप उस तरह से नहीं किया हुआ. So you're working and your networking opportunity is it's like a pool, right? It's not very vast. कराची लाहौर के लोगों को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो केपी में आके किसी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी में पार्ट ले रहे हैं. फर्स्टली देयर इजंट एनी, या अगर हो भी रही होती है तो द एक्सेस इज़ वेरी, जो है इट्स वेरी कंस्ट्रेंड. ठीक है, उस तरह से वो नहीं होती. जहाँ तक आपने बात की है हाउ द बिजनेस the startup ecosystem is basically clashing with the business community, so I'll just give you a very basic example of that. So a startup is basically an idea which is solving a problem of a society. That's how I see it, right? So if I'm starting a business, I should have like, why am I starting it? What is this? And how am I gonna do it, right? So that why is the problem that I need to एक कोई solve. भी प्रॉब्लम है, I'll give you a solution, I'll sell you the I'll solution. sell you the solution, and it could be anything. Abhi to hum primarily we're talking about IT, but it could be literally anything. So if I talk about the textile industry or even the clothing industry, so there is a line of clothing in Peshawar jo chal rahi hai. That is a conventional business. So a startup come in, theek hai, and they are all into sustainable clothing. theek hai. Suddenly they're like, if we want to save the environment, we do ये not. स्टार्टअप्स? No, I'm just giving you a hypothetical situation. Okay. Right? So suddenly there's a startup and it goes like, we're into sustainable clothing. Now we have to make clothes that are not fast fashion, and हमें like पुराने कपड़ों को recycle करके बनाना है, thrifting की तरफ focus करना है. So आपका unique selling product क्या है? That you're saving the environment. You're practically For that, taking... the people you're selling it to need to care about the environment. Yeah, but वो तो आप जगह अपने, जगह पे होता है हाँ, ना. बट इट्स लाइक आप अपने कपड़ों में ऐसी चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग इट कि ये जो कपड़ा मैंने बनाया है इट्स नॉट मेड फ्रॉम स्क्रैच, इट्स रिसाइकल्ड, किसी और चीज़ से रिसाइकल होकर बना आई है. अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अब डेवलपिंग स्लैश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या की जो आवाम होती है, दे माइट नॉट केयर अबाउट इट एज मच एज जो डेवलप्ड नेशंस हैं. बट अनफॉर्चुनेटली दे आर द मोस्ट अफेक्टेड. यस, वो तो हम उसको रिलेट तो कर ही नहीं पाते ना कि हमें फ़र्क पड़ रहा है तो हमें ही इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. वो पीपल हु आर अबव द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स वो इस बारे में सोच रहे होते हैं. Yeah, so the idea was to explain how a unique selling product in a startup differentiates and moves beyond the conventional business that are already in place. ठीक. ठीक है, so that's how you frame it basically. तो पाकिस्तान के बाकी फ्रीलांसर्स वगैरह देर वर्किंग विद फॉरेन कंपनीज एज अ फ्रीलांसर. आईटी इकोनॉमी बेहतर जा रही है इंडस्ट्री, और बिकॉज ऑफ दैट फॉरेन करेंसी भी आती है. सो इज द यूथ ऑफ केपी मूविंग टूवर्ड्स दैट एज वेल?
So 2018 में KPK launched its first ever digital policy, digital KP policy, and the entirety of it is कि पाकिस्तान KP में जितने भी आपको IT sectors या IT incubation centers नज़र आएंगे, वो सारे basically revolve around that digital policy. So it's very highly praised and highly implemented document. वो पॉलिसी चार चीज़ों के ऊपर बात करती है. टॉक्स अबाउट डिजिटल स्किल्स, टॉक्स अबाउट डिजिटल एक्सेस, डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजिटल इकोनॉमी बेसिकली. आई अग्री कि करंटली आपका जो स्टेट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी है, नॉट जस्ट इन केपी बट ओवरऑल आप देखें तो इट्स नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, it needs a lot of working. There's still work being done on Payoneer or PayPal, Apple Pay वगैरह को पाकिस्तान में लाने के लिए काम किया जा रहा है. So freelancers or the IT companies are currently इस चीज़ के ऊपर वो they are currently struggling, but the good news is that in October 2023 State Bank of Pakistan ने जो है it increased its retention limit from 35% to 50%. So जो आपके specialized foreign currencies accounts होते हैं उस पे you can actually retain 50% of your foreign currency जो आपकी earnings है. And so you don't need to put money outside of Pakistan, you can bring in money inside Pakistan and you can You just can keep retain it it. as the Yes. foreign currency you So have received. 50% you can retain and 50% you can then convert. So it's all about that. So it's a great development, and I think we're currently moving towards it. बाकी चीज़ों में भी डिजिटल इकोनॉमी को हम जिस तरह से बेहतर करें, आई थिंक इसमें रिकमेंडेड ये है कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज जो हमारा रूरल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है. तो टेलकोस जो है हमारी वो इस पे काम कर सकती हैं, जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं हमारी उनको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है. देयर आर कंट्रीज़ जिनकी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की हैं कि एक्सेस टू how to bridge the rural urban divide has been kind of overtaken by reducing the prices of internet packages, reducing the prices of mobile phones. So what they're doing is कि जैसे हमारी लैपटॉप स्कीम होती है, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होती है, and it's a very well established scheme और काफ़ी चलती भी है, काफ़ी बच्चों को बेनिफिट भी आई थिंक it's बहुत very होता है. beneficial. I think it's मैंने very जिस इंसान के पास भी वो लैपटॉप देखा है ना जो कि गवर्नमेंट स्कीम से होता है, वो हमेशा कोई वेल डिजर्विंग इंसान नहीं होता है, इन माय ओपिनियन. yeah, and आई हैव नेवर it's सीन a इट कि very good मेरे device जैसे या as well. किसी It's a very good device as well. उस बच्चे को जंप तो बहुत बड़ा मिल जाता है. Exactly. So it's basically आप करना क्या चाह रहे होते हो, आप access बढ़ा रहे हो. This is a digital access that you're giving that kid, right? That you're giving that child deserving, right? फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, उसके बाद दे कैन मूव Exactly, ऑन टू अनदर exactly. बेटर थिंग. So in countries, there are countries who do that with the mobile phones, but it's a very monitored in a sense के digital education, ed tech, ठीक है, through phones आपको दे रहे हैं. एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग इन कोविड स्पेशली, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने आपका एक्सेस इतना आसान कर दिया. इंटरनेट पैकेजेस जो है वो उन्होंने सस्ते करना शुरू कर दिए हैं, मोबाइल फ़ोन सस्ते कर दिए हैं आपको. देर प्रोवाइडिंग यू फ्री फ़ोन्स कोविड में, ताकि आप एजुकेशन से जो है दूर ना रह सके. सो आई थिंक इन सिचुएशंस लाइक दैट, अभी कोविड वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, नथिंग लाइक दैट इसके वाज अंदर एवर. आई थिंक पाकिस्तानी हर कंट्री मूव टुवर्ड्स डिजिटलाइजिंग देमसेल्व्स. डिजिटलाइजेशन, एंड तब एहसास भी होता है कि हाउ मच दिस वाज नीडेड हाँ, and how much how were we like, convenient it is, how convenient it is. how many more streams of revenue you can generate sitting at home. And the economy, actually some of the economies really boomed. हमारी e-commerce industry was doing a lot well better. जो पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाउ आर दे मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर द आईटी इंडस्ट्री टू ग्रो? स्किल्ड वर्कफोर्स किस तरह की प्रोवाइड की जा रही है, या स्किल्ड एजुकेशन आईटी के अकॉर्डिंग? So it's a very good question, and thank you for bringing that up, because how I see IT industry and education is that everything that is happening in the country is has its root causes in the education system of the country, right? So what we need to do is कि currently जो biggest problem is the persist is the industry academia gap. And I'm saying that not because I know that people, companies, institutes, be it HSC, be it even Pasha, we're working towards
bridging that gap. We're working towards skill development, we're working towards curriculum designs, but I think a lot still needs to be done on the part of the universities as well, right? So जो इंडस्ट्री एकेडेमिया का जो एक डिवाइड है, आई सी इट एज सिमिलर टू द अर्बन रूरल डिवाइड, बिकॉज जैसे वो दोनों आपस में डिस्कनेक्टेड है ना, क्या हो रहा है उधर, इल्म बहुत कम है, वहाँ वही सेम मॉडल इधर रेप्लिकेट हो रहा है. बिकॉज इफ यू लुक क्लोजर इनटू इट, you'll start to feel it, you'll start to realize that yeah, there is an entire gap कि आपकी इंडस्ट्री के स्किल्स, जो इंडस्ट्री को स्किल्स चाहिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड व्हाट यू टीचिंग एट यूनिवर्सिटीज इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है, अभी करंटली HSC ने इन कोलैबोरेशन विद पाशा, PSEB, SIFC एंड अदर a lot of other organization, इन्होंने लॉन्च की है सेंट्रलाइज्ड IT टेस्ट. ठीक है, उसमें बेसिकली देर इन्वॉल्विंग, इट्स ऑन नेशनल लेवल, सो देर इन्वॉल्विंग 200 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें जो IT ग्रेजुएट्स हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट देंगे, और वही जो टेस्ट होगा उसके साथ एक कोऑप्टिंग प्रोग्राम होगा जिसके ऊपर उनकी रैंकिंग्स होंगे. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल दिस पर्सन हैज स्कोर्ड 90%, 80%, 70%, सो द कंपनीज कैन एक्चुअली सी देम ऑन द डिस्कवरी पोर्टल्स कि दिस इज द competency of the following individuals, and then those companies basically hire those individuals in their companies on the internship programs, and then they train them and then employ them in their own company as permanent employees, right? So through these centralized tests, you're actually formulating an entire process of employment generation, job क्रिएशन creation होगी इससे तो. basically. So skill development and the curriculum development, what you need to do is कि स्किल तो आपने डेवलप करना है, लेकिन व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नीड टू डेवलप, वो आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स नहीं बताएंगे. स्किल डेवलपमेंट आपको इंडस्ट्री के लीडर्स बताएंगे. प्रोफेसर्स वैसे ही इतने अरसे से यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, दे डोंट जनरली नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रियल वर्ल्ड. हाँ, टेक इंडस्ट्री और डिजिटल जो भी इंडस्ट्री है, इट्स ग्रोइंग सो एक्सपोनेंशियली, इवॉल्विंग सो एक्सपोनेंशियली कि वो 10 साल पीछे आप जाएं तो इट्स नॉट देयर, 5 साल आगे जाएं इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड. इसका बड़ा इशू है. करिकुलम तो हमारे वैसे ही बहुत पुराने स्टाइल के चेंज हो रहे आउटडेटेड, हैं, ब्रिटिश आउटडेटेड. जमाने के. 10 साल पहले भी आउटडेटेड थे, अभी भी वही चल रहे हैं. एग्जैक्टली. तो यूनिवर्सिटीज़ में स्किल लेवल किस तरह इंक्रीज किया जाए? पॉलिसीज इसके ऊपर चल रही हैं, क्या बनेगा उसका? So basically, abhi Pasha has also done some of the programs like tech lift वगैरह, boot camps वगैरह हम लोग करते रहते. We have an entire skill development department that's working on it. So skills and policy, we do this hand by hand. तो उसमें basically हम लोग ये करते हैं कि boot camps जब कराते हैं, so we connect these industry leaders, और उन इंडस्ट्री लीडर्स को हम लोग एज ट्रेनर्स हायर करते हैं, एंड दोस्त देर आर लाइक अराउंड 20 कंपनीज जो कि हमारे टेक लिफ्ट प्रोग्राम में थी. सो वो 20 कंपनीज जो हैं उन सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हैं ऑन द स्किल्स दैट आर इन ट्रेंड, in demand in the market, right? And that's how they kind of train them, and then there's the the process of hiring them into their companies. So जो करिकुलम डिज़ाइन की बात है और जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, आई थिंक उस पर काम हो रहा है, लेकिन on the same time we need to speed up a lot, because if you look at it, it's the progress that, as you've already mentioned, that the progress that technology is making, the pace that technology has already taken is so much higher than the pace at which our universities are running, right? So you need to catch up. You need to catch up before the world goes up and above, and your industries and your institutes, because aapke graduates hoke nikalte hain students, and they have like absolutely no clue what to do with their lives, what to do with their careers. So with that, career counseling bhi aa jati hai beech mein, but upskilling is an important element that needs to be यूनिवर्सिटी से integrated. लोगों का वैसे ही एतमाद उठ रहा है कि यार यूनिवर्सिटी में जाके हमें फील्ड, जब हम 2 यूनिवर्सिटी years job ready program, that's it. हाँ, हम किसी फील्ड की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उस फील्ड में जाते हैं, तो वी हैव टू लर्न इट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, क्योंकि हमने थ्योरी भी उस तरह की पढ़ी होती है. डिजिटल इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही फ़र्क है कि लोग यूनिवर्सिटी में उस स्किल के लिए जनरली जाते ही नहीं है. जो लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग की सीखते हैं आगे और आ जाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में काम करना पड़ता है. और फ्रीलांसर्स मैंने जितने ज़्यादातर देखे हैं, इफ़ देयर इज़ अ फ्रीलांसर जो कि बायर सर्विसेज प्रोवाइड करा है,
वो सर्विसेज हैव नथिंग टू डू विद द डिग्री दैट ही हैज़ डन और शी हैज़ डन. यूनिवर्सिटी तो डिजिटल की तरफ जाती ही नहीं है, तो उसके लिए आप वाली बात है कि 2 ईयर प्रोग्राम जो अपस्किलिंग डायरेक्ट. होनी चाहिए. अब केपी में बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं. केपी आईटी बोर्ड ने काफ़ी प्रोग्राम्स फंड किए हुए हैं, जिसमें आपकी है एक केपी यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, आपका अर्ली एज प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपको छोटी सी उम्र में दे टीच यू प्रोग्रामिंग एंड अपस्किलिंग वगैरह सिखाना शुरू कर देते हैं. इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, बट देन अगेन पेस अप करना है. दैट्स द पेस इज़ नॉट मैचिंग. इसके अलावा एक और इशू है जेंडर डिवाइड का, यस. और अर्बन रूरल डिवाइड भी है. अब मैकेंजी की एक रिपोर्ट थी जिसमें उसने बताया हुआ था, कंपनी ने सर्वे था, दैट आई थिंक पूरे पाकिस्तान में 13% ऑफ वेमेन यूज़ द इंटरनेट. अब ये है तो 2-4 साल पुरानी, बट इवन 2-3 साल इज़ नॉट अ लॉन्ग टाइम. 13% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ वेमेन इन पाकिस्तान यूज़ द इंटरनेट, और उस 13% में से सिर्फ 7% रूरल वेमेन यूज़ द इंटरनेट. इसकी वजह से बड़ा फ़र्क है. IMF की एक रिपोर्ट थी कि 30% GDP ग्रोथ बढ़ सकती है इफ़ सोशल जेंडर गैप जो है वो पूरा हो जाए पाकिस्तान में. सो इसके ऊपर क्या हो रहा है? I'll just quote. बिकॉज आई एम सॉरी, जॉब प्रमोशन जो रिमोट वर्क है, Hmm. इंटरनेशनली आप रिमोट वर्क करते हैं, उसमें सबसे बड़ी ईज़ और उसकी जो प्रमोशन होती है ना, वो इसी बेस पे होती है कि इफ़ यूर अ हाउस वाइफ, इफ़ Hmm. यू स्टे एट होम, यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन डू अ जॉब फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम. बट बिकॉज लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस ही इंटरनेट नहीं है, एक्सेस लोगों नहीं है. के पास वो रुझान भी नहीं है, दे डोंट नो दी फर्स्ट 3 steps टू गेटिंग देयर. Hmm. तो स्पेसिफिक फॉर वुमेन क्या रोड मैप्स है, ठीक है. I'll just quote a report here. I2I Ventures है हमारे, इट्स अ वीसी फर्म पाकिस्तान में, इन्वेस्ट टू इनोवेट. इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की थी विद एडम स्मिथ बैक इन 2021, and the stats in that report stated that there are around 65 male founders, startup male founders, and 35% female स्टार्टअप founders, फाउंडर्स. startup founders, which is, if you look at it, it's literally the half of what the male founders have to offer, right? So the female is at the half of the ratio, and among them, there are like 60% of them are under the age of 30, which provides an opportunity that we have a young population thriving and spirited working in the field. So wo ek opportunity hai. But when you talk about that women are not in the market, so पहले से तो ऑफ कोर्स बेहतर हुआ बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटरमेंट, लेकिन थोड़े से प्री कंसीव नोशंस भी होते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली केपी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली दैट रीजन. वहाँ पर जो मसला है, वहाँ पर सोशो कल्चरल नॉर्म्स हैं कुछ, ठीक है. वुमेन आर नॉट टिपिकली अलाउड टू गो आउट एंड do jobs, let alone the businesses. लेकिन still girls are coming out, women are coming out, and kind of contributing into the economy. आपकी एक KP में there is an organization called the Parvani Khanam organization, which is specifically focused on women-led entrepreneurs, ठीक है. उनकी specifically trainings करती हैं, उनको startup pitches तैयार करवा के देती हैं. They SMEs होते थे, स्मॉल एंड मीडियम small medium एंटरप्राइजेज. enterprises, they're also very prevalent in Peshawar, और वैसे भी overall चल रही है. Most of them are supported by the USAID, small medium enterprises के जो programs है उसके through वो काफ़ी ज़्यादा. SMEDA जो है बहुत support करता है, it's a government organization. Similarly, there are a lot of women-led businesses working in KP, लेकिन जो access to internet है और जो अर्बन रूरल डिवाइड है, आई थिंक जैसे कि मैंने इसके ऊपर पहले भी जिक्र किया कि टेलकोज शुड कम इन इस चीज़ में, एंड वी नीड टू प्रोवाइड देम विद काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर हम लोग उनका एक्सेस ईजी करें. सो द इंटायर पॉइंट हेयर इज़ अबाउट द एक्सेस. हमें पॉलिसीज इस तरह की बनानी चाहिए, अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट वेयर दे कैन थ्राइव एंड वेयर दे कैन वर्क. आई मीन there are a lot of offices, IT offices in Peshawar. I won't name them, but I have worked there, and द इंटायरिटी ऑफ इट इज़ के पूरे ऑफिस में 40 मर्द एंड 4 औरतें हैं. इमेजिन करें. वो एंड तो हाँ, मैं नंबर्ड आपको सोशल. पूरी नंबर्ड बता रही हूँ, मतलब लिटरली 4 वुमेन एंड 40 men working in that office. And it's not that कि I couldn't make my way out of that office. I had a lot of learning in that office, but that kind of makes me sad that how a lot of women that are
competent, right? A lot of women that have a lot of capability, they're educated, they're not put up into that kind of environment. So I think it's a lot to do with the social education of the society. फैमिली टू फैमिली, रीजन टू रीजन सोशल Region to वैल्यूज डिफर region करती social हैं. values differ आई करती डोंट हैं. थिंक इट्स अ बैड थिंग कि अगर इफ अ वुमन डजंट वांट टू वर्क, इफ दे डोंट वांट टू गो इनटू एन इंडस्ट्री या उसमें, इट्स फाइन. बट एक्सेस आपने कहा ना होना चाहिए, होना इंटरनेट चाहिए. एक्सेस है. नो बडी माइंड्स मेकिंग अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा बक्स फ्रॉम होम. Yeah. इंटरनेट अभी तक पाकिस्तान में जिधर जिधर है वो भी नहीं ठीक. जिधर जिधर नहीं है उधर उधर कैसे जाए. I think it's a very valid point. It's a very very valid point. 4Gs and 5Gs के ऊपर जो है we need to make sure कि we create a bandwidth uh, through you know opportunities like Starlink, जहाँ पर हम इनको एक platform provide करें, and where we make sure that these networks are so strong, because अभी तो आप मोटरवे पे चढ़ें तो आपका साथ ही सिग्नल्स लूज होना शुरू हो खत्म. जाती है. तो आई थिंक बिल्कुल. जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, दे नीड टू पुट देयर फोकस ऑन दीज एरियाज, क्योंकि we are into policy making. We can advise them to certain areas है, आप इन पे काम कर सकते हैं. There's an entire urban rural divide, there's an entire gender divide. आप gender को किस तरह inclusivity में के दायरे में डाल सकते हैं, आप urban rural divide को telcos companies के थ्रू कैसे कर सकते हैं. But I think implementation part comes on the behalf of the government. हाँ, इस पे तो नहीं, हम जितनी मर्जी यहाँ पे बात कर हाँ लें हाँ इशू पे, बिल्कुल. वो एंड पे आके एक ही पॉइंट है कि and I'm pretty sure the government is actually working really hard on it and doing the effective implementation of policy making, because we are kind of seeing कि IT exports बढ़ रहे हैं, हमारी IT industry grow कर रही है and boost कर रही है, and it's not out of the vacuum. It's working hard day and night, and the people we have really talented pool of people. आईटी इंडस्ट्री एंड फ्रीलांस कल्चर और स्टार्टअप कल्चर, आई थिंक उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो इंडिविजुअलिटी पे और इंडिविजुअल अकाउंट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे चलता है कि यार मैंने कुछ करना है, आई एम नॉट गोइंग टू लुक फॉर अ जॉब, या मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँगा. एंड दैट इज़ वाई इट ग्रोज बेटर देन एवरीथिंग एल्स. हाँ, बट इसमें आई थिंक द वन पॉइंट दैट वी नीड टू रेज हेयर इज के जो फ्रीलांसर हमारी कम्युनिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है. बट एज पाकिस्तान व्हाट वी नीड टू डू इज के these freelancers, they need to come together and form companies now. उनको ये Full गाइडेंस fledged. चाहिए अभी. उनको ये गाइडेंस नहीं, दिस इज अ रिकमेंडेशन फॉर देम दैट दे नीड टू कम इन फुल सर्कल एंड फॉर्म IT कंपनीज. क्योंकि एक जैसे आप देखें बहरिया टाउन वगैरह, DHA स्टैब्लिश सोसाइटीज़ होती हैं, लेकिन साइड पे कच्ची आबादियाँ होती हैं. हम नहीं चाहते कि फ्रीलांसिंग कम्युनिटी हमारी कच्ची आबादियों की तरह रह जाए, उनको भी IT कंपनीज में ट्रांसफॉर्म होने की अब ज़रूरत है. दिस इज़ द टाइम नाउ. So this is the recommendation, that the intervention that we need to make to push freelancers to become IT companies, large IT companies. फ्रीलांसर्स, आई थिंक कंपनीज सब एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, बट वर दे शाइन इज कि यार सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, देन विल हायर. आई थिंक इवेंचुअली ऑल फ्रीलांसर्स, सबका इवेंचुअल गोल यही होता है, बट नॉट एवरी वन वर्क्स टूवर्ड्स दैट गोल एज सच. लेकिन गोल यही होता है कि फर्स्ट मैं करूँगा कुछ, फिर मैं करवाऊँगा कुछ, एंड देन आई विल बिकम अ कंपनी. सो दे वही बात है कि हाँ, हर जगह हर बंदा इंडिविजुअली ना करे, इंडिविजुअल करके कम टुगेदर एंड हाँ, फॉर्म एन but move towards ऑर्गेनाइजेशन. selling the services to product creation, made in Pakistan product creation, ताकि हम export कर सकें. तो ये दो इश्यूज रह गए एंड पे. गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन एंड कमिंग टुगेदर ऑफ freelancers to form companies and moving towards products. Product creation made in Pakistan. It was a very good conversation. मुझे बड़ी चीज़ें IT इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता थी, जो प्रोग्रेस और पॉलिसी मेकिंग के बारे में आई फाउंड दैट आउट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो. आज की हमारे मौजू के ऊपर बस यही बात थी. इफ़ यू हैव एनी ओपिनियंस ऑफ योर ओन, प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, एंड वील मीट अगेन नेक्स्ट वीक.